Good morning, students. Welcome to my social class. Today I am going to start the new chapter in social. That is the chapter number 2, Maps and Globes. Maps and Globes. Here, in the previous chapter, we have studied about the solar system and our planet Earth. Okay, and a Portuguese sailor. His name was Ferdinand Magellan, and he proved that the shape of the Earth is round. Okay, तो फर्डिनेंड मैगलेन जो स्पेन के या पोर्चुगीज सेलर थे, उन्होंने क्या प्रूव किया कि हमारे अर्थ का शेप कैसा है, राउंड. बट स्टिल द मेनी अदर पीपल दे हैव अ फियर दैट इफ दे विल मूव थ्रू द ओशंस they may forget the way, so they try to travel on the oceans, on the water bodies. जैसे कि उन्होंने फर्डिनेंड मैगलेन ने ये तो प्रूव कर दिया कि राउंड है, लेकिन बाकी लोग जो वाटर के थ्रू सेल करना चाहते हैं उनमें डर था कि यदि हम समुद्र के रास्ते से जाएंगे तो कहीं रास्ता भटक ना जाए. यस और नो? तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका जो हमारे अर्थ का मॉडल, जैसा हमारा अर्थ दिखता है उसका जो मॉडल है उसको प्रिपेयर किया गया कि हमें कैसे मूव करना है, कैसे हमें ना अर्थ के बारे में और स्टडी करना है. उसके लिए क्या क्या किया गया, सेम जो अर्थ का मॉडल है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब, दैट वाज प्रिपेयर्ड. यस और नो? आई एम शोइंग यू द पिक्चर आल्सो. दिस इज द ग्लोब एंड व्हाट द शेप इज द राउंड शेप. यस और नो? And it is not easy to carry the globe from one place to another. हम ऐसा ग्लोब प्रिपेयर कर लिया और एक जगह से दूसरी जगह हम अपने बैग में या सूटकेस में ऐसे तो रखकर नहीं जा सकते. ओके, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द ग्लोब, they have prepared the map. They have prepared the map. What is the map? A map is a drawing of the entire earth or a piece of it on a flat piece of paper. Okay, ग्लोब को हम कैरी नहीं कर सकते. एक पीस ऑफ पेपर में अर्थ का एंटायर अर्थ या कोई पार्ट, जैसे इंडिया एक पार्ट है तो कोई भी पार्ट आप उसे जैसे एक मैप में ड्रॉ करके इसको फोल्ड कर आप कहीं पर भी कैरी ऑन कर सकते हैं. यस और नो? एंड फॉर डिटेल वी विल फॉलो द बुक. ओके, now students, I am going to explain you the chapter number 2, studying the earth, maps and globes. Okay, in this picture we will study deeply about the maps and the globes. Okay, now coming to the first exercise, write the first letter of the picture to get 2 words. Okay, you have to identify the first letter of the picture given here. The first one is Goa, the second one is lion, the third one is orange, the fourth one is bat, and the fifth one is egg. And by combining all these first letter of these picture, the word which we get is globe. Globe, globe. Okay, now coming to the next picture is, the first one is monkey, and the second one is apple, and the third one is peacock. By combining the first letter of these picture, we get MAP, that is the map. Okay, now coming to the chapter, sailors like Ferdinand Magellan and others had helped to prove that the earth is round. Now people were not afraid of getting lost any more. They started traveling far and wide. Gradually, the shape of the earth was believed to be like that of an orange, flattened at the top and bottom, with bulge at the center. Okay, here जब फर्डिनेंड मैगलेन, जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रूव किया कि जो अर्थ का शेप है वो कैसा है, राउंड है, और अब बाकी लोगों को भी अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में डर नहीं लगता था, क्योंकि उनको ये पता है कि अर्थ राउंड है और इसमें अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक चुंबकीय शक्ति होती है जो हमको स्पेस में गिरने नहीं देती है. ओके, तो लोगों के अंदर का जो डर था वो दूर हो गया. अब वो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री
ये ओशंस के थ्रू ट्रैवल करने लग गए। ओके, और उनको ये भी पता था कि अर्थ का शेप कैसा है, ऑरेंज, लाइक एन ऑरेंज, मीन्स फ्लैटन एट द टॉप एंड बॉटम विथ अ बल्ज एट द सेंटर। यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा फ्लैट है, और जो सेंटर पार्ट है वो कैसा है, बल्ज टाइप का है, यानी फूला हुआ है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज इज, today we will study about the globe. Okay, and you are seeing the picture of the globe. It is the picture of the globe. Okay, have you ever seen a globe? Children, you have seen the globe? I hope so many of you have seen it. Yes or no? Our earth is huge, but a globe is a small round model or the copy of the earth. It shows different places on the earth. We can only see half of the earth at the time on the globe. We need to rotate the globe to see the other half. Okay, बच्चों आपने ग्लोब देखा है ना, ये जो हमारा अर्थ है वो बहुत बड़ा है, yes or no? और ये जो ग्लोब है वो अर्थ का स्मॉल मॉडल है या स्मॉल कॉपी है। ओके, और आप इस ग्लोब में क्या देखते हैं, बहुत सारे प्लेसेस देख रहे हैं ना अर्थ पर, yes or no? And we can see only half of the earth at a time on a globe. यदि हमको ग्लोब पर यदि कोई भी प्लेस देखना है तो हम सिर्फ हाफ पार्ट को ही देख सकते हैं। हाफ पार्ट किस साइड में है, बैक साइड में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्लोब को रोटेट करना पड़ेगा। yes or no? On the globe you can see a line running horizontally which divides the earth into two equal halves. And this is the imaginary line called the equator. It divides the earth into two equal parts. Okay, students, ये बीच में एक लाइन है जो रन करती है, और ये जो ना अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो ऊपर का पार्ट होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, और जो नीचे का पार्ट होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर होता है। और जो इमेजिनरी लाइन, ओके, इमेजिनरी लाइन जो होती है उसे हम कहते हैं इक्वेटर। वी कॉल इट एज इक्वेटर। आपको ये इंडिकेशन दिया गया ना इक्वेटर का, ये येलो कलर की लाइन है, ये कौन सी है, ये वाला है जो ये इक्वेटर है, और ये हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, नॉर्दर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट। We call it as northern hemisphere, southern hemisphere. Okay, our earth has many places on it, but it is not possible to show all the places in the detail. So we use the map. Okay, हमारे इस अर्थ पर बहुत सारे places हैं, yes or no? Continents हैं, 7 continents, और उन continents में बहुत सारी countries हैं। Okay, और small places को ग्लोब पर दिखाना easy नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैप। वी यूज मैप। आपको देखिए, आप इस ग्लोब में देख रहे हैं, इसमें इंडिया का जो शेप है, वो इंडिया जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही छोटा सा दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन अब हम इसको और इसमें हम जो छोटी छोटी प्लेसेस हैं वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जैसे आगरा कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैप। वी यूज द मैप। Okay, now we will come to know what is a map. A map is a drawing of the entire earth or a part of it on a flat surface. It can show different things about our earth, such as the physical features, political division and other things. Okay, ये map क्या होता है, जब हम किसी फ्लैट सरफेस पर या फ्लैट पीस ऑफ पेपर पर या तो पूरे अर्थ को या एक स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ को हम ड्रॉ करते हैं, उसे हम कहते हैं मैप, है ना। आप ये मैप देख रहे हैं, ये क्या हुआ, ये कैसा है, ये एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर पर ड्रॉ किया हुआ है, यस और नो, तो इसे हम कहते हैं मैप। और ये जो हमारे ग्लोब का एक छोटा सा पार्ट है, इंडिया, जो आपको बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है, उसे हम बहुत बड़ा सा एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं।
ओके और ये मैप के थ्रू हम बहुत सारी चीजें स्टडी कर सकते हैं। तो ये कौन सा है? ये फर्स्ट वाला है फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, लेक, ओशंस एंड रिवर्स। ओके ये जो फिजिकल मैप होता है, ये आपका जो ये चैप्टर में दिया हुआ है, ये फिजिकल मैप है। ओके इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ पर प्लेन्स हैं, कहाँ पर कहीं पर डेजर्ट्स हैं, कहाँ पर ओशंस हैं, कहाँ पर रिवर्स हैं। इनके बारे में डिटेल में जो भी मैप हमें बताता है उसे हम बोलते हैं फिजिकल मैप। ओके और इनको हम कहते हैं फिजिकल फीचर्स। ओके नाउ कमिंग टू द सेकंड वन इज द पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप, तो पॉलिटिकल मैप कंट्रीज, कैपिटल, सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। ओके जो पॉलिटिकल मैप होता है, इंडिया का भी आपने पॉलिटिकल मैप देखा है ना, तो उसमें क्या हमें दिखाई देता है? आपको इसके किसी भी कंट्री की बाउंड्रीज, उसके स्टेट्स, उसके कैपिटल्स, उसके टाउन्स या विलेजेस के बारे में पता चलता है। यस और नो? आपने भी देखा इंडिया का पॉलिटिकल मैप जिसमें आपको इंडिया की बाउंड्री, उसमें स्टेट्स, 29 स्टेट्स, उसके कैपिटल्स वगैरह उसमें हम देख सकते हैं और हम उनके बारे में डीपली स्टडी कर सकते हैं। That map we call it as political map. And the other themes, places with different kinds of forest, places where different kinds of plants grow and so on. और एक और नेक्स्ट जो होता है वो है थेमेटिकल मैप कहते हैं, जो और दूसरी थीम्स बताते हैं, जैसे वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ पे फॉरेस्ट कैसे हैं, या वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो इस टाइप का जो भी मैप जो हमको डिटेल में सब कुछ बताता है उसे हम बोलते हैं थेमेटिकल मैप। ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज मैप मेक यूज ऑफ सम commonly understood symbols to show capitals, airport, police station, hospitals, petrol pump or other places and things on it. Okay, जब you are seeing this map, no, it is very difficult to write the names because these maps are very small. Okay, to overcome those disturbances we use the symbols. Okay, बच्चों जैसा आप जानते हैं कि यदि हम मैप में हर चीज लिखना चालू करेंगे, जैसे सिटीज है, एयरपोर्ट्स है, पुलिस स्टेशन है, तो क्या होगा, हमारा मैप एकदम नीटली दिखाई नहीं देगा। ओके, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंबल्स। सिंबल्स आप कौन से भी सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे आप जैसे एयरपोर्ट का आपको सिंबल करना है तो आप एरोप्लेन बनाकर अलग अलग कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर एयरपोर्ट्स है वहाँ पे छोटा छोटा एरोप्लेन बना सकते हैं। तो हम इजीली हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं। वैसे ही कैपिटल्स है या सिटीज हैं, उनको हम डॉट लगा देंगे, उससे ही पता चल जाएगा। हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में हम प्लस साइन लगा देंगे। तो या पेट्रोल पंप है तो एक छोटा सा बॉक्स टाइप का रेड बॉक्स बनाएंगे। तो इस तरीके के स्मॉल सिंबल्स यूज करने से हम इस मैप को इजीली स्टडी कर सकते हैं। और कहीं कहीं पर हम कलर्स भी यूज करते हैं, जैसे आप ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो इसमें डिफरेंट कलर्स यूज किए गए हैं। ये भी एक तरह का सिंबल्स हैं, तो इससे हम इजीली इस मैप को स्टडी कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज अ की इज ऑलवेज एडेड टू द मैप एंड इट एक्सप्लेन्स व्हाट द सिंबल स्टैंड्स फॉर। तो हम सिंबल्स तो लगा दिए, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? तो हमें डाउन साइड में आप ये देख रहे हैं एक की बनाया हुआ होता है, इट इज अ की। यस और नो? और इस की के हेल्प से हम ये पता चल सकता है कि हमको क्या स्टडी करना है। यस और नो? ये जो सिंबल्स यूज किए गए हैं वो हमें क्या समझा रहे हैं। जैसे हमारे इस मैप में आपको कलर्स दिए गए हैं। यस और नो? दे आर शोइंग यू द डिफरेंट कलर्स। Okay, and by reading this key which is given here, we can easily study the map. Okay, map can also help us to calculate the distance between the places. They help us to locate places easily. और इसके अलावा मैप्स है, इसको हम we can calculate the
डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस। यदि हमें एक जैसे मुंबई से दिल्ली तक का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है तो हम इस मैप से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं या कोई भी प्लेस को इजीली हम लोकेट कर सकते हैं। ओके, तो ये मैप बनाना भी एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू ये मैप बनाया जाता है, ये दोनों। और जो इस मैप को बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। ओके, कार्टोग्राफर। Okay students, today I have explained you about the globe and the maps. The rest of the part I will explain you in the next class. Okay students, bye. Have a nice day.